दोस्तों, मैं मीनाक्षी सांगानेरी आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ 22 सितंबर 2022 की सदीनामा रोजाना न्यूज़ बुलेटिन। अब आगे बढ़ते हैं बुलेटिन की। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक का उपयोग बढ़ाने के लिए 21 सितंबर 2022 को एमसीसीआई और पोर्ट ट्रस्ट द्वारा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंच पर उपस्थित थे विनीत कुमार, IRSEE अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, एमसीसीआई अध्यक्ष ऋषभ कोठारी, विशाल झाझरिया, डॉक्टर सौगात मुखर्जी उपस्थित थे। मंच संचालन जसोधरा चक्रवर्ती ने किया। आपको हमारा सदीनामा रोजाना बुलेटिन अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। Duties are imposed and revised nowadays, and quotas are being done on various beat rights, this, that. So in exam presentations, it is very important for all of you to actually understand what exactly the circular means, what can be done, what does it mean. So it's a very good initiative by MCCI. I really appreciate that, and making me a part of this is I'm very thankful to them. So I wish all the best to their exam cell, and from the port side we assured that all the support and information will be provided to the cell very well in time for the benefit of all our exporters, importers, industry partners. Now coming to today's topic on port infrastructure and logistics. I think Mr. Kothari knows much more than me, has already told you so many things that it's become difficult for me to tell you. What else to tell you, he has told you everything. We had a detailed speech with all laden with facts and figures. तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं है कहने के लिए, but I'll give you a broader outlook of the government on what is happening in the port infrastructure and logistics, and also certain issues which were raised by Mr. Kothari as regards the Shyama Prasad Mukherjee port. You are all aware that the Gati Shakti program was launched around a year ago, and now very recently our Honorable Prime Minister has launched the National Logistic Policy. For the benefit of all, I tell that Gati Shakti is a program which looks forward towards integrated and seamless movement of goods, services from one end to another. And the broader aspect of this is that in the government there are 16 departments which look after the hard infrastructure and the soft infrastructure. So there is port, shipping, railways, roadways, national waterways, and you have Ministry of Commerce, Ministry of so many other departments are there, and then NHAI, all so many agencies are there, and it was thought that since all of them are working in different directions and in their own ways, we should have a platform where all of them should come together and they should look towards integrated planning. So it's basically a portal which has been made. I know because I have been interacting with the team which is making it, and from the port side I am the chief coordinating officer. So it is a portal where you will find where a road is, how much is the road width, where a port is, how many berths are there, what projects have been implemented, what projects are getting implemented, what are the future projects, rail connectivity कहाँ है, road connectivity कहाँ है, inland waterways कहाँ है, national highway कहाँ है, वो सब चीज एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है। पहले इट वाज इनिशियली डिसाइडेड कि ये सिर्फ एक सरकारी पोर्टल रहेगा, हम लोग इसको प्लानिंग बॉडीज जो है इसको देखेंगे आपस में, सो दैट
आई वांट टू नो कि हमारे पोर्ट में जो रोड आने वाला है वो क्या प्रोग्रेस है, बना है कि नहीं बना है, कितने लेन का बन रहा है, तो आई शुड बी एबल टू नो सो आई कैन प्लान accordingly. Likewise, but now it has been decided that a lot of it will be open to the general public also, so that they also at least know कहाँ पे क्या हो रहा है. और अगर प्राइवेट सेक्टर की कुछ रिक्वायरमेंट है, आप अपनी इंडस्ट्री बैठाना चाहते हैं, आप अपना प्लांट लगाना चाहते हैं, वेयर हाउस बनाना चाहते हैं, so you know कि मुझे कहाँ पे यहाँ पे रोड आने वाला है, यहाँ पे रेल आने वाली है, कितनी दूर है, कितना पास है. So that is what Gati Shakti portal is, and what it looks for multimodalism. Multimodalism means आप एक मोड से दूसरे मोड में जाएंगे, आप रोड से रेल में जाएंगे, रेल से रोड में जाएंगे, रेल से शिप में जाएंगे, फिर दूसरे में जाएंगे. That is multimodalism. Multimodalism is the is at the heart of it. Now, when you talk of multimodalism, it's a very good word, but it is where the problem lies. So whenever you shift from one mode to another, आप अपने दयाल जी ने जब आप अपने वहां से लाते हैं कंटेनर बस ट्रक से लेके आते हैं, फिर पोर्ट में लाते हैं, पोर्ट में लाते ही आपको उतारना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है. There is a physical delay, physical. You have to take out whatever goods or service you are transporting from one mode to another. So there will be some time delay. आप एक जगह से उतारेंगे, रखेंगे, चढ़ाएंगे, उसमें समय का डिले होगा. वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अच्छा नहीं है तो ज्यादा देर लगेगा, अच्छा है तो आप जल्दी कर लेंगे. सो दैट्स द हार्ड पार्ट ऑफ इट, द हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट ऑफ इट. दैट द फोकस इज दैट वी शुड इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट दीस डिलेज आर मिनिमाइज्ड. सो व्हेनेवर यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन मोड टू अनदर, so this delay is minimized and you are able to move quickly. Now time is money, so जितना जल्दी आप जाएंगे उतना ज्यादा आपका पैसा बचेगा. What is hearty vote of thanks to Shri Vinit Kumar, Chairman, Shama Prasad Mukherjee Board, Kolkata. Given the importance of global value chains in the world economy today, there is an increasing focus on efficient management of ports and logistics systems. Kolkata Port, the oldest and the most only riverine port in India, plays a very significant role in the economy of the country. Under the able leadership of Shri Kumar, the performance of Kolkata Port during pandemic has been really appreciative. We are extremely happy to note that Kolkata Port recorded the highest ever net surplus in the year 2020-21 post-lockdown compared to any other port in India. As the gateway of Eastern India, the most important port still retains predominance of the premier port for trade and commerce for the entire Eastern India and the landlocked Himalayan kingdoms of Nepal and Bhutan. Thank you so much, Mr. Kumar, for sharing with us the future plans, emphasizing on connectivity, estate management and capacity augmentation. We also thank you for launching the MCCI Exhibit Facilitation Cell. We hope the cell will add another feather to the cap of crown of MCCI, and through this initiative, MCCI will play a significant role in making a difference in the export-import ecosystem of the state of West Bengal in particular and Eastern India region in general. We also thank Mr. Samrat Rai, Deputy Chairman, Shama Prasad Mukherjee Board, and all the other board officials who are present here today for their presence. Our special thanks to our sponsors, Chittoor Logistics, Rashmi Group, Incon Chemicals, and G Limited for the support. I convey our sincere thanks to the distinguished guests and media friends for their presence and participation today. With these words, I would propose a warm and hearty vote of thanks and request. आप पोर्ट के ऊपर आप जो इतने बता रहे थे, जी जी उसके बारे में ये बताइए कि जो ये पोर्ट के रेगुलेशन जो या रूल्स है वो इन लोग के क्या फ़ायदेमंद रहेंगे किनके फ़ायदे? व्यापारियों के लिए? देखिए, फ़ायदा सबसे कम है कि कम रूल्स और रेगुलेशन हो, सबसे ज़्यादा फ़ायदा वही है. तो हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं रूल्स और रेगुलेशन को. जो अभी मल्टीपल जगह पे उनको पेपर्स देने पड़ते हैं, सबमिशन करना पड़ता है, वो जो ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में एक ही जगह पे करना पड़ेगा और ऑटोमेटिक जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी. जैसे कस्टम्स है, पोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, सबको अब अलग अलग जाके उनको उनके अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम में जो लॉगिन करना पड़ता है और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है तो एक ही जगह से सबके पास चली जाएगी. तो इनके जो व्यापारियों के जो खर्चे हैं वो क्या वो कम हो जाएंगे और समय जो लगेगा वो कम लगेगा, ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएगा.
और समय कितना कम लगेगा सर अगर? देखिए, समय हमारा अंदाज है कम से कम 30 से 40% कमी आनी चाहिए समय के अंदर, जो प्रोसेसिंग का टाइम है उसमें कम। और सर आप डेजिंग के ऊपर जो बता रहे थे कि आप 100 करोड़ आप मट्टी जो डेजिंग करवा रहे हैं, जी। तो फिर भी जगह जगह जो डेजिंग है वो कब सही होगी? नहीं, देखिए, हम जो ड्रेजिंग करते हैं, जो हमारा शिपिंग चैनल है उसका हम ड्रेजिंग करते हैं, तो हम साल में 300 करोड़ रुपए का ड्रेजिंग करते हैं और करीब 10 मिलियन क्यूबिक मीटर मिट्टी निकालते हैं। बट क्योंकि ये डेल्टा है और जो अपर रिचेस हैं, जो ऊपर से गंगा बगती हुगली आके यहाँ बनती है, जो ऊपर से मिट्टी आती है वो नीचे आके बैठ जाती है, तो उसको हमें निकालना पड़ता है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन सर एरिया तो पोर्ट के अंदर आती है जहाँ भी डेजिंग है, और फरक्का बांध वाली भी अभी स्थिति बहुत खराब है, तो उसको आप अभी क्या सोच रहे हैं? नहीं, फरक्का बांध और जो उसके जो हावड़ा ब्रिज से ऊपर का इलाका है उसमें हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, वो उसको ड्रेजिंग करेगी। सर जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक दर्शकों को बताएं। ये आज कोई भी उद्योग के लिए पोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा होता है। आज कहीं भी उन्नति अगर हम चाहते हैं तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो नहीं सकता। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट आज यहाँ ईस्टर्न इंडिया का प्रीमियर पोर्ट भी है, और आज हमारे साथ उनके चेयरमैन विनीत कुमार जी आ रहे हैं। उन्होंने लास्ट कुछ साल में बहुत ही बेहतरीन काम किया है और पोर्ट को ऑलमोस्ट एक टर्न अराउंड जैसा उन्होंने काम किया है। तो आज ये इंटरेक्शन है कि अभी तक जो हुआ है उसका एक आप समझ लीजिए एक डिस्कशन है, और आगे बढ़ा के कैसे काम किया जाएगा, कैसे। तो आप चाहते हैं कि व्यवसाय को पोर्ट के जरिए कैसे आगे बढ़ाया हाँ जाए, जी। और जो भी अगर कोई समस्या है तो उसको पोर्ट के जरिए। पोर्ट की समस्या है तो चेयरमैन साहब आ रहे हैं, उनसे बातचीत हो सकती है कि कैसे सब समस्या का समाधान निकाला जा सके। और आगे भी इसकी रणनीति, हाँ जी, आगे की रणनीति तो आगे कार्यक्रम में पता चलेगी उनकी क्या रणनीति है। हमें तो साथ में काम करना है। थैंक यू सर। जो है ना विनीत सर जो बता रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए ये लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आया हूँ जिससे कि आगे आप लोगों को काम करने में सुविधा हो। आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? देखिए, आज इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट 13 से 14% हो रहा है। वर्ल्ड का एवरेज देखेंगे तो 6 से 7% होना चाहिए। तो आज के दिन इंडिया में 6 से 7% एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है लॉजिस्टिक्स का। तो ये पॉलिसीज़ जो इस तरह के आ रहे हैं जिसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, कनेक्टिविटी, ये सब इंक्लूडेड है, उससे क्या होगा कि कॉस्ट कम करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं तो आपको लग रहा है कि आपकी कॉस्ट कम होगी? नहीं, देखिए 7% आएगी कि नहीं बोलना मुश्किल है, लेकिन 13-14 से तो कम डेफिनेटली होगी। लेकिन जो साथ में एक्साइज ड्यूटी है वगैरह है, ये सब देखिए वो तो लॉजिस्टिक कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है। एक्साइज ड्यूटी तो एक टैक्स है प्रोडक्ट पे, गुड्स पे है। हाँ। जीएसटी हो गया, ये सब है। बट आपने लॉजिस्टिक कॉस्ट का बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाने का जो कॉस्ट है वो तो आपने कह दिया, लेकिन जब एक्साइज ड्यूटी भी अगर कम पड़े तब ना आप लोग को लाभ हो। नहीं, देखिए ये तो एक फिजिकल पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिजिकल पॉलिसी है, उसमें तो लॉजिस्टिक से कोई उसका लेन देन नहीं है। नहीं, वो तो अलग हो गई। मैंने एक्साइज ड्यूटी का ये बोला कि अगर वो भी अगर कम पड़े तो आप लोगों को थोड़ी। ऐसे तो आज सब जितने टैक्स कम होंगे उतना बेनिफिट होगा कंज्यूमर्स को। लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना भी एक रेवेन्यू देख के चलना पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली देश तो चलाना पड़ता है ना। अच्छा सर, जो बाहर से सामान आ रहे हैं, जब आ रहे हैं तो वो महंगाई का कारण बन रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि बाहर से सामान आने से महंगाई का कारण बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है डिमांड एंड सप्लाई के कारण। आज डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, बोल कर महंगाई बढ़ रही है। तो जैसे डिमांड कम होगी या उसको जैसे गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई पॉलिसी ला रहे हैं इंटरेस्ट को लेके, तो इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं ताकि ऑफ टेक कम हो पैसे के, तो उससे कंट्रोल होगा इन्फ्लेशन। आप आज की जो ये सारी बातचीत के ऊपर आप क्या कहना चाहते ये हैं? बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा एंड विनीत जी हमेशा की तरह मैंने हमारे चैम्बर से जुड़े हुए हैं, कई बार आए हैं, और ये हमेशा बहुत फ्रैंक एंड ओपन डिस्कशन करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इनका टर्म ख़त्म हो रहा है 8 अक्टूबर को, तो वी विल मिस हिम एज चेयरमैन ऑफ कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट।